merely listening to knowledge and taking the knowledge is one side of the show. Now we are going to transform you into a melodious event, which is going to be our star performer, which is our Vijay Kedia sir, who is waiting to meet all of you on the stage through the voice, through the making noise, and through you all on the stage. We are now going to have in 1 second, and before that, I take opportunity to just inform you all of you, Investitia, the title coined. We wanted to reward and award the person who created the title and who branded the title. It is Mr. Steven has designed it, and Diana ma'am, she is from NKS coordinator. She has coined the word Investitia. The entire background has been already given to you. I just request Diana ma'am to come onto the stage and please take a kind of token of love, a small memento. Moving on to the felicitation of the colleges, I request the following college representatives to join us on the dais. Professor Shubhashini Iyengar and Sangamitra Mishra ma'am, Dr. Sangamitra Mishra from SIWS College. Dr. Ritika Palak from KC College, Churchgate. Professor Gayatri Nayak from Adarsh Vikas Mandal, Karamveer Bhaurao Patil College. Professor Tanit Alam from MIMR College and Professor Jyoti from Guru Nanak College. All done, sir. All done? They're there. They're still waiting there. Go in now. Go inside. Go there. A huge round of applause and a big thank you to all the participating colleges. Can we hear it for y'all? To our next session, I request Shri Hemant Kakkarji, Chairman NR and me, who will be our moderator for the next session, and may I invite upon Shri Vijay Kedia, our speaker for the next session. Hemant Kakkar will moderate. He will take the Yes. session. Hemant Kakkar sir is well known. He is a chairman NR in the northern region. He has come all the way just to see all of you here, and this is a wonderful moment. He is going to share and introduce the star Vijay Kedia sir, and I am requesting Mr. Hemant Kakkar ji to take the position of moderation. Thank you very much. Thank you प्रसाद साहब. अब वो पल आ गया जिस पल की आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है, और उतना ही इंतज़ार मैं देख रहा हूँ विजय केडिया जी को भी है कि वो भी मुझे कई बार बोल चुके कि अभी जो है इस प्रोग्राम के बाद में उनको निकलना भी है. तो सबसे पहले तो मैं वो पढ़ूंगा कि जो मैं लिख कर लाया हूँ आपके लिए, उसके बाद में फिर मैं दिल की बात करता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लूँगा. मुझे मालूम है कि आप सब मुझे सुनने नहीं आए, आप विजय केडिया जी को सुनने आए हुए हैं. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एस्टीम्ड गेस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स, members of NME, a very good afternoon to you all. On behalf of Association of National Exchanges Members of India, I, Hemant Kakkar, Chairman NME-NR, welcome you to Investitia World Investor Week 2023.
We are here to celebrate World Investor Week with an extraordinary convergence of finance, music, and inspiration. This event is a testament to the power of knowledge and creativity in shaping our financial destinies. I am thrilled to see such an enthusiastic turnout despite a tempting cricket match between India and Pakistan. Your presence here is a testament to your commitment to learning and growth. I want to ensure you that despite the tempting cricket match, you have made the right choice to be here today. I am sure that when you leave this place, then you would be more informed, confident, and inspired. Now it's time to welcome introduce our just special guest and key speaker, a figure whose journey resembles with the spirit of today's celebrations. He is a renowned investor, a mentor, and an inspiration for all of us. Yes, you all guessed it right. He is Mr. Vijay Kedia. Mr. Vijay Kedia is a private investor in the stock market, having experience of more than 3 decades. Kedia ji, a commerce graduate born and brought up in Kolkata, joined stock market with zero capital. Some of his investments have appreciated 100 times in last 20 years. He has been a keynote speaker in many business schools, including IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Amritsar, and London Business School. Vijay ji was conferred with a doctorate degree, and recently he was awarded for Ace Investor by Honorable Minister Shri Piyush Goyal and Shri Devendra Fadnavis ji. सर आपने 4 लाइनें बोली थी विजय जी उस प्रोग्राम के अंदर, वो मैं एक बार ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा, जरा प्लीज प्ले कीजिएगा। जिन्हें यहाँ बुलाने जा रहा हूँ उन्हें सम्मानित किया जा रहा है एस इन्वेस्टर सम्मान से। विजय केडिया साहब हमारे साथ हैं, उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगा। भारत के ग्रोथ और उसके साथ शेयर बाजार सबसे इंपॉर्टेंट हो सर, थोड़ा टिप्स वगैरह, थोड़ा कुछ ऑफ कोर्स पीयूष सर के सामने मैं बोल रहा हूँ, सर हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा कुछ तो बनता है सर। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना मेरा बिजनेस है, और लेकिन मैं कुछ कविताएं करता हूँ और मैं गाने लिखता हूँ स्मॉल और छोटे इन्वेस्टरों को एजुकेट और मोटिवेट करने के लिए। तो मैं 12-13 गाने लिखे हैं। एक 4 लाइन की कविता मैं जल्दी से आपको सुना देता हूँ, बोर नहीं होंगे ऐसा लगता है मेरे को। और ये मैंने लास्ट ईयर लिखी थी, और इसका सारांश यही है कि ज़िंदगी में आप जिस भी फील्ड में हैं वो अपनी जगह को मत छोड़िए, अपनी क्रीज को मत छोड़िए, क्योंकि समय को भी नहीं मालूम है कि वो समय आपके लिए कब आएगा। तो अपनी जो छोड़ के चले जाते हैं वो आउट हो जाते हैं, अदरवाइज क्रीज पर डटे रहिए। उसके लिए 4 लाइन की कविता ये है मेरी कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है। मेरा माइक कौन है? और इसके आगे है, ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है, कसले कमर उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है। थैंक यू। केडिया साहब इतनी खूबसूरत चीज लेके आप जा रहे थे, वो तो अच्छा हो मैंने आपको What makes Mr. Vijay Kedia even more remarkable is his unique ability to blend music with financial literacy. He has written and sung dozens of songs on investing to educate new and small investors. He has seamlessly managed his love for music into the world of investments. So let us all welcome Mr. Vijay Kedia to stage with a big round of applause. आइए विजय, ताली बजती रहनी चाहिए प्लीज। Mr. Ashish Ajmera to join me and felicitate Vijay ji, please.
विजय मेहता जी, प्लीज कम। विजय जी, मेरी माँ ने मुझसे कभी बोला कि दो तरह की देवी हैं, एक लक्ष्मी जी हैं और एक सरस्वती जी हैं। तो उनका मानना ये था कि जहाँ लक्ष्मी जी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मी जी वेल्थ की देवी हैं, वो नॉलेज की देवी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों देवियों की आप पे असीम कृपा है कि दोनों ही आप पे जो है विराजमान है, आप पे वो हैं और आगे जो है असीम कृपा बनी रहे। तो इसके साथ मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो ये जर्नी जो है इसको स्टार्ट करा जाए। पहले इस बारे में बता देता हूँ कि आपने नाम दिया सरस्वती जी और लक्ष्मी जी, तो सरस्वती जी से मैंने संगीत बजाना सीखा, समझ सकते हैं आप 1 मिनट के लिए। और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो मैं उल्लू हूँ, इस बोल कर दोनों की कृपा है मेरे ऊपर। राइट सर। विजय जी के सॉन्ग्स की एक मेडली जो है हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, वो मेडली हम लोग एक बजा रहे हैं। उसके बाद में आप जो अपने एक साथ में इंटरेक्ट कीजिएगा विजय जी के साथ में। अपनी विजय के लिए सुन अपने विजय की धुन। है दिल है मुश्किल कमाना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ट्रेडिंग में मेरे जान। ला 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 ला। कभी DI कभी FI इन्फ्लेशन, कभी तेल कभी डॉलर कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। प्रॉब्लम्स के हैं कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के ट्रेडिंग में मेरी जान। डा 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 ला 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 ला। कभी चिंता कभी फियर कभी क्राइसिस की धुन, खेल सकता नहीं इनका तो म्यूचुअल फंड चुन। इन्वेस्टमेंट के हैं कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के शॉर्ट टर्म में मेरे जान। ऐ दिल है सिंपल कमाना यहाँ, इफ लॉन्ग टर्म ओनली लॉन्ग टर्म, बस लॉन्ग टर्म मेरे जान। अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया। ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज
सोना कमाया मजा आ गया। मेरे शेयर बाजार मैंने मानी नहीं हार, तू गिराया उठाया मजा आ गया। तो हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे को यहाँ पे कुछ अवार्ड भी दिया, तो मैं शायद पहला ऐसा आदमी हूँगा जो बिना कुछ किए आपने मेरे को अवार्ड दिया। लोग बाद में देते, आपने पहले दिया मेरे को, थैंक यू वेरी मच। और बोलते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, तो मेरे को समझ में आ रहा भूखे भजन न होए गोपाला, ना निकल रहा है सुर न गाया जा रहा है गाना। तो अभी ये है कि मैंने कुछ गाने लिखे हैं, अगर आप लोगों को अगर समझ में अगर आया होगा, ऑडियो क्लियर अगर होगा, तो मेरे सब गानों का मूल मंत्र एक ही है शेयर बाज़ार के अंदर में, कि मार्केट के अंदर में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा। ये बाकी के गाने आप बाद में यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। मेरे सब गानों का सार एक ही है, जो मैंने मेरी ज़िंदगी में सीखा है और वो जो समझा है वो यही है कि यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट जो है ये पैसा कमाने का बहुत इजी, पैसा कमाने का बहुत हार्ड प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट इज़ ए प्लेस टू मेक ईजीएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। तो ये आपको समझना चाहिए। इसके पहले कि आप लोग शेयर बाज़ार में घुसे और अपना करियर बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए। जो मेरे ये मेडली के अंदर में वो सारा मेरे ख्याल से जो भी मैंने ज़िंदगी में जो भी सीखा है वो सारे ज्ञान मेरे ख्याल से कि इन गानों के अंदर में है। तो आप लोग यूट्यूब पे या यहाँ से जहाँ भी आप लेकर इनको ज़रूर सीखिएगा, इनको ज़रूर समझिएगा और उस पर अमल कीजिएगा अगर यहाँ पर सक्सेस होना है। और एक जगह मैंने एक एग्जांपल दिया था कि स्टॉक मार्केट में जो यहाँ पर जो सक्सेस है वो बैम्बू ट्री के जैसे है। बैम्बू ट्री क्या होता है कि हम बैम्बू ट्री का जो सीड को जब हम ज़मीन में बोते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर 3-4 साल तक, 4 साढ़े 4 साल तक कोई ग्रीन शूट नहीं आता है उस बीज का ज़मीन के ऊपर में। और आप रोज़ उसमें पानी डालते रहिए, उसको संभालते रहिए, लेकिन कोई भी ग्रीन शूट नहीं आता है। तो ऐसे लगता है, डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि शायद ये मालूम नहीं कभी होगा कि नहीं होगा। लेकिन अचानक 4.5 साल बाद के अंदर में जब उसमें से ग्रीन शूट आता है और वो जब वो पौधे निकलते हैं तो अगले 4-6 वीक के अंदर में वो एक 40 से लेकर 60 फीट लंबा ट्री खड़ा हो जाता है, बैम्बू ट्री खड़ा हो जाता है, 40 से लेकर 60 फीट लंबा ट्री। तो ये समझ में आता है कि वो 4 साढ़े 4 साल तक ये कर क्या रहा था, जो अचानक 4-6 वीक के अंदर में इतना बड़ा ट्री खड़ा हो गया। तो वो 4 साढ़े 4 साल तक अंदर ही अंदर अपनी जड़ें फैला रहा था। वो जो बीज है वो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें फैला रहा था और अंदर वो ग्रो हो रहा था, इसके लिए कि जब वो बड़ा हो और 40 से 50 साल तक के लिए वो 40 से 50 फीट के लंबे ट्री के बोझ को सह सके। तो ये वो बैम्बू ट्री की कहानी है। और ये सेम ऐसी की ऐसी कहानी शेयर बाज़ार के अंदर में है। यहाँ पर ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। 90% लोग फेल यहाँ पर इसके लिए होते हैं कि यहाँ पर ओवरनाइट करोड़पति बनना चाहते हैं। और ये सबसे बड़ा एकमात्र कारण है कि लोग शेयर बाज़ार के अंदर में सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं है। तो मैं कई जगह बोल चुका हूँ कि नॉलेज, करेज और पेशेंस, ये 3 चीज़ यहाँ का गुरु मंत्र है शेयर बाज़ार में सक्सेस होने का। नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस तरह आप अच्छी कोई स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, और करेज होना चाहिए कि आप उसमें कितनी एक बड़ी पोजीशन ले सकें। समझिए आपके पास में 100 रुपया लगाने को है तो आप कम से कम 10 रुपया एक शेयर्स के अंदर में लगा सकें, लेकिन इसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं तो वो करेज दुधारी तलवार के जैसे है, वो आपको आपकी रक्षा भी कर सकता है और आपको काट भी सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र यहाँ पर पैसा कमाने का, वो है पेशेंस, जो आप बैम्बू ट्री से आप सीखते हैं कि ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये किसी को नहीं पता है कि जैसे मैंने आपने सुना होगा जब मेरे को अवार्ड मिला तो मैंने बताया समय को भी नहीं मालूम है कि वो कब आएगा, आपके समय को भी नहीं मालूम है कि वो कब आने वाला है। इस बोलकर आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर ये तीनों चीज़ों का आप समन्वय करते हैं तो शेयर बाज़ार के अंदर में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी इसको आप धंधा समझिए, इसको आप बिज़नेस समझिए। अगर आप इसको एक मेरा कोट भी है और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सारे कोट्स आपको गूगल पे और यहाँ पर ट्विटर पे आपको मिलेंगे, आप उनको ज़रूर पढ़िएगा। वो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, तो उनको आप ये ज़रूर पढ़िएगा। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि पैसा यहाँ पर कमाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है कि जैसे एक बार वो एक पिक्चर मैंने देखी थी, तो विद्या बालन ने कहा था कि ज़िंदगी में 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट। तो अगर कोई भी अच्छा मैनेजमेंट, अगर वो ईमानदार नहीं होगा तो वो खुद के लिए पैसा कमाएगा, आप पैसा कभी नहीं कमा सकते हैं। तो इस बोलकर
वो समझना कि ये कौन सा मैनेजमेंट अच्छा है। तो और मैनेजमेंट की 3 क्वालिटियाँ होती है। मैनेजमेंट हैज़ टू बी ऑनेस्ट सबसे पहले, दूसरा हंग्री टू ग्रो, एंड तीसरा स्मार्ट, कि वो परिस्थितियों से कैसे जूझ सकता है और किस तरह परिस्थितियों से निकल के कंपनी को, समझिए जैसे कोविड की स्थिति आई, उसमें किस तरह से अपनी कंपनी को उससे बचा के निकाल कर ले जा सकता है ख़राब स्थितियों के अंदर में। तो ये क्वालिटी होती है मैनेजमेंट की सक्सेस होने के लिए। और मेरा ये जो आप लोग बैठे हुए नए स्टूडेंट्स हैं, इनको मेरा ये कहने का है, ये मेरा ये आप समझिए एडवाइस है कि शेयर बाज़ार में डायरेक्ट घुसने के पहले आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, या डायरेक्ट शेयर बाज़ार में नहीं आइए, क्योंकि पहले आप 2, 4, 5 साल पहले आपको सीखिए। और अगर आपको समझिए डॉक्टर बनना अगर है तो आपको 5 साल तक के लिए परीक्षा करनी पड़ती है। 5 साल तक आपको MBBS का आपको करना पड़ेगा, या LLB करना पड़ेगा अगर लॉयर बनना चाहते हैं, या अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर आप किसी के अंडर में काम करोगे, फिर जाकर आप अपनी फर्म खोलोगे, और आपको अगर प्रैक्टिसिंग CA बनना है। लेकिन जब शेयर बाज़ार में कोई आता है तो ये सब कोई काम करता नहीं है। वो सीधी अपने आया और कॉलेज में बैठा और घर में बैठा बिना कुछ जाने सोचे समझे बिना बटन दबा देता है, और वो फ्यूचर और ऑप्शन से अपना करियर चालू कर देता है। इसमें से 100 में से 1 आदमी खाली सक्सेस होता है, और वो 99 आदमी इस पर फेल हो जाते हैं, और 99 आदमियों का पैसा वो 1 आदमी कमाता है। तो ये मेरा एक गाना और भी है कि वो अभी आप सुनिएगा, जो नया गाना मेरा था कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो इस तरह ये बातें आपको मैं बोलना चाहता हूँ। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है तो मैं वो क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ, और बस यही मेरा संदेश है। F5 के चक्कर में बेच न देना माल तुम्हारा, ये जब लेने को आएंगे शेयर होंगे 9, 2, 11। पॉकेट में ये माल फूकते इनके बाप का क्या है जाता, ब्लाइंडली इनको फॉलो करता वो ये 2 लाइन दोहराता। ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा, ओ मैं तो मर गया मम्मा। इनका जब भी ये कुछ करने आते थे, इनके कारण सारे शेयर इधर उधर हो जाते थे। रिटेलर ने मिलकर इनकी ऐसी बाट लगाई है, अब ऐसा लगता है DI की बारी आई है। इनका गया जमाना, इनका गया जमाना, इनका गया जमाना, इनका गया जमाना। से ज्यादा दुनिया में सॉलिड मंदी छाई है, इंडिया ही एक देश है ऐसा नई सुबह जहाँ आई है। सोच समझ कर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर करो निवेश, फ्यूचर टिप भंगार कैप से ऑलवेज होगा तुमको क्लेश। इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना, इंडिया का है जमाना। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिपे ना टाइम वेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर,
रूमर पे टिप्पे ना टाइम वेस्ट कर। नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये। अनुभव से सीख और बेस्ट कर, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे ना टाइम वेस्ट कर। शॉर्टकट कभी भी ना टेस्ट कर, हार को भी अपनी डाइजेस्ट कर। पैसे बनाने का फॉर्मूला बस एक, पैसे बनाने का फॉर्मूला बस एक। लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर। चलिए तो यही है जो मैंने मेरी ज़िंदगी में सीखा है कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे ना टाइम वेस्ट कर। तो बस यही है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई अगर क्वेश्चन आंसर है तो हम उसको ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि हम सब जो ये जानना चाहते हैं कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ऐसे जो 3 रीजंस हैं जो समझते हैं कि जो आपको यहाँ पर लेकर आए। तो प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नहीं, जर्नी ऐसा है कि जर्नी तो शुरुआत की कि सभी जैसे जर्नी शुरुआत करते हैं, सभी स्ट्रगल से करते हैं। तो मैंने भी स्ट्रगल से जर्नी शुरुआत की और कोई पैसा वैसा तो था नहीं। और तो मैं एक्चुअली जर्नी शुरुआत हुई मेरी ट्रेडिंग से। तो मैंने ट्रेडिंग से मेरी जर्नी शुरुआत की क्योंकि इनिशियल कैपिटल मेरे को चाहिए था, लेकिन कैपिटल थी नहीं। तो उसको कैपिटल को जुगाड़ करने के लिए मेरे को समझिए 10 साल लग गया और 10 साल के अंदर में 10,000 रुपया भी मेरे पास इकट्ठा नहीं हुआ। तो इस मुल्क का मेरा एक कोट बनाया है जो अभी बाद में मेरे अनुभव से कि आप 2 तरीके से इनिशियल कैपिटल आप बंदोबस्त कर सकते हो शेयर बाज़ार में पैसा लगाने के लिए। एक तो ये हो सकता है कि आप समझिए कोई नौकरी कर रहे हो या पेरेंट्स से आपको पैसा मिला है या कोई आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। लोग सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग से भी इनिशियल कैपिटल बंदोबस्त कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग से जो इनिशियल कैपिटल सोचते हैं कि बंदोबस्त कर सकते हैं, उसमें आपको समझना चाहिए कि सक्सेस रेट 1% है या समझिए 5% है। तो 95% संभावना ऐसा है कि जो पैसा इनिशियल जो पैसा लगाने जा रहे हो ट्रेडिंग के अंदर में, वो पैसा भी वो प्रिंसिपल भी आपका ज़ीरो हो सकता है। और दूसरा सबसे अच्छा तरीका ये है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल कैपिटल बंदोबस्त करने का, और वो होता है अपने खर्चे को कम करना। समझिए आप महीने के अंदर में 2,000 रुपया खर्चा करते हो, 4,000 रुपया महीना खर्चा करते हो। तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं किस तरह से खाली 500 रुपया खर्चा करूं और 1,000, 2,000, 3,000 रुपया, 4,000 रुपया हर महीने में किस तरह से मैं मेरी पॉकेट मनी से मैं बचाऊं। और वो आप समझिए कि वो आपके लिए ज़िंदगी की एक परीक्षा की घड़ी होगी। आप अगर 2 साल वो पैसा कम, अगर आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हैं तो उन पैसों से आप इनिशियल कैपिटल जुगाड़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसमें सक्सेस रेट 100% है क्योंकि इसके अंदर में आपके लॉस होने की संभावना नहीं है। और वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो या किसी जो भी कोई एक्सपर्ट है जो पैसा मैनेज करता है उसको आप दे सकते हो। मैंने ये नहीं सीखा, मैंने ये लेट सीखा, मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं था। इस बोल कर मेरे को बहुत सालों लग गए उसी इनिशियल कैपिटल को जुगाड़ करने में। उसके बाद में फिर मैंने समझ में आ गया कि ये फ्यूचर के अंदर में कुछ होने वाला नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं 1% वाले श्रेणी में हूँ। तो फिर मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया और फिर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चालू किया। तो वहाँ से मैं कुछ पोजीशन जो मेरी है वो कंफर्टेबल हुई। ओके। तो विजय जी, एक आपका एक गाना है जिसके ऊपर में हमारा दुख दर्द, इन्वेस्टर्स का दुख दर्द है कि सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई और हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ा ही नहीं। तो एक गाना है आपका शायद इसके ऊपर में, जरा वो गुनगुनाएंगे, वो गाना क्या? तेरा निफ्टी ऑल टाइम हाई फिर भी मेरा शेयर आधा, फिर भी मेरा शेयर आधा। लार्ज कैप जब लिए कितने खून पिए, मिड कैप भी लेके खाए हैं धोखे, दगा दे गया FMP। ऐसा ही गाना
है। हाँ या ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विजय जी। आइए आइए विजय जी, आइए ऊपर। हाँ, आपकी लाइफ जब आपने शुरू की तो कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट थी और जो आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही, और उसको सिलेक्ट आपने या क्या सर्कमस्टेंसेस हुए जब आपने उसमें इन्वेस्ट किया? नहीं देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट की जो थीम है ना वो हर मार्केट में बदलती रहती है। हर बुल मार्केट में और इकोनॉमी के जितने भी साइकिल है उसके अंदर में हर समय इन्वेस्टमेंट की थीम बदलती रहती है। तो मेरा खाली मैंने लाइफ में एक ही काम किया है कि जो भी नई थीम आने वाली है मैं खाली उसके बारे में जानकारी ढूंढते रहता हूँ कि अभी नई इमर्जिंग थीम क्या होने वाली है। और मैं कभी भी ज़्यादातर मैं पुरानी थीम पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। जो थीम एक बार चल पड़ी है मैं उसको नहीं करता हूँ जब तक वो नया रीसाइकिल नहीं हो। तो इस बोलकर मैंने कई शेयर्स मेरे को ऐसे मिले, जैसे मैंने 2003 से 7 के अंदर में मैंने वो तो मदर ऑफ बुल मार्केट था, तो उसके अंदर में कई चले। तो मैंने ऑटोमोबाइल में भी उसके अंदर में मैंने इन्वेस्ट किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उसके अंदर में लॉजिस्टिक्स में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो इस तरह से हर समय थीम बदलती रहती है। तो हर इन्वेस्टर को ये चाहिए, और मेरा कोड भी है कि ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट एंड स्टे आउट ऑफ ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। तो आप ये खाली ये ढूंढने का है कि अगला सूर्योदय किधर होने वाला है। तो ये आपको हेल्प करेगा एक नया मल्टी बैगर पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए। पीछे सर आपसे शुरू हो रहा है। आशीष भाई पीछे दे दो, पीछे शिवाश। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी स्टडी होता है, लेकिन एग्जिट कभी करना चाहिए वो इन्वेस्टर से कैसे पता चलता है? तो ये पूछ रहे हैं कि शेयर बाजार में घुसना तो सबको मालूम है, एग्जिट कब करना चाहिए। तो बराबर है, ये थोड़ा अभिमन्यु के जैसा खेला है कि आप अंदर तो जा सकते हो, निकलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक जगह एग्जांपल दिया था, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि ये इसका सबसे बड़ा आपको कि कब एग्जिट करना चाहिए, इसका आपको उदाहरण सबसे मिलेगा विभीषण के लाइफ को पढ़ने के बाद में। विभीषण क्या किया था, जो रावण था, जो AAA मैनेजमेंट था, उससे बड़ा ज्ञानी आदमी, उससे बड़ा ब्राह्मण आदमी, उससे बड़ा पंडित आदमी दुनिया में कोई नहीं था उस समय, ठीक है। तो विभीषण जी थे वो, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रावण के अंदर में क्योंकि AAA मैनेजमेंट था। लेकिन उसके बाद में जब देखा कि मैनेजमेंट का जो फोकस है वो चेंज हो गया है, और मैनेजमेंट की जो मेंटालिटी जो उनका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उस समय उस मैनेजमेंट को त्याग दिया, वहाँ से उस मैनेजमेंट से एग्जिट ले लिया। और जो राम जो थे वो भी AAA मैनेजमेंट थे, लेकिन वो डिस्ट्रेस में थे, उसने दूसरे AAA मैनेजमेंट को लिया जब वो रॉक बॉटम पे था। यही शेयर बाजार की कहानी है कि एक सनसेट को त्यागा और दूसरे सनराइज़ को, जो आप बोल रहे थे, तो एक दूसरे सनराइज़ को पकड़ा। तो वो भी AAA मैनेजमेंट था, तो उसने वहाँ एग्जिट की और यहाँ पर एंट्री की, और बाद में वो श्रीलंका का राजा हो गया यहाँ पे। तो यही इन्वेस्टर की कहानी है, यही आपको सीखने का कि कब निकलने का और कब एंट्री करने का। हाँ मैडम, बोलिए। आप पूछ रहे थे कुछ, प्लीज। Yes, sir. So, sir, my question is, I'm a student right now, and I'm an undergraduate student of BFM, and you said that we should give 5 years investing in mutual funds first, and then enter into the stock market. So, sir, what should we study during those 5 years? What should we research about? What should we learn? नहीं, तो you should research, you should understand what is the nitty-gritty of this investing. You should watch the market. You should read the economic. You should read about economy. What is happening in the economy of the country where you are investing? Like suppose in India. So what is the economical situation of India? What is happening in the companies? You should watch interviews of all the management which you get nowadays free. Okay, you watch just a channel. You are giving 100 rupees, 150 rupees, and all these big shots like SDFC का chairman और रिलायंस का चेयरमैन और इसका चेयरमैन, ये सब आकर आपको फ्री में वहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर कंपनी, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। You should also see that wherever you have invested, whichever mutual fund you have invested, you should they send you report every month. You should try to read about the company where your mutual funds have invested. You should also read the broker's report. Broker's report is prepared by, you can say that maybe 5 CFA and 5 CA together, or maybe 2-3 MBAs together. A team of all such an intellectual people have created the broker's report. Okay, good brokers report I am talking about.
not to know that what the price is going to be, whether shares is going to rise or shares are going to fall. Don't see that. See how do they analyze the company. That is the best way that you can learn that how a educated person is analyzing a particular thing. That will give you, enough of hint. Okay, these are the parameters I should look for evaluating a company. These are the things which are important for a stock market, which will push the share price up. All these things you should read. All these business newspaper you should read. All these management interview you should watch. And you should start doing mock trading with yourself. Like side by side, you are investing in mutual fund. Side by side, you should start mock trading. Okay, suppose I have 1 lakh rupees and I have invested 1 lakh rupees, direct investment I'm talking about, in these 5 stocks or say 10 stocks. Read about all those 10 stocks. Read their annual report, read their con calls, listen to their con calls. Read about any news related to those companies and all. This is how you develop your business, your mindset about investing. Okay, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. Any other question? Please. हेलो सर, दिस इज़ विकास मान सिंह। तो सर सब लोग बात करते हैं कि माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल बात करते रहते हैं कि माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली क्या माइंडसेट होना चाहिए कि जो नया ट्रेडर मार्केट में उतर रहा है या इन्वेस्टर मार्केट में उतर रहा है, तो उसे मार्केट में क्या पर्सपेक्टिव लेके उतरना चाहिए कि मैं ऐसे काम करूँ या इस तरीके से काम करूँ? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने समझा मेरी लाइफ के अंदर में, और मेरा कोट भी है कि KYS इज मोर इम्पॉर्टेंट देन KYC. KYC is know your client, you fill the form, you will give your all the details to your broker when you open an account with them, right? So before that you should know KYS, know yourself. You should know yourself कि आपका mindset क्या बोल रहा है, आपका जो personality है वो किस चीज़ के लिए सही है। आप क्या डेली ट्रेडिंग करते हो और उसमें अगर आपको पैसा लग जाता है तो घर में जाकर आप झगड़ा करते हो अपने मम्मी पापा से या नहीं करते हो, या आराम से आप सो जाते हो या एक पैक दारू मार के सोते हो, ये आपको डिसाइड करने का है कि आप उसको किस तरह से लेते हो। क्योंकि यहाँ पर लॉस को झेलना ये बहुत बड़ा काम है। हम लोग बोला करते थे कि घाटा काटना, स्टॉप लॉस जो घाटा काटना अपने हाथ से अपना दूसरा हाथ काटने के जैसा होता है, इतना जटिल काम ही है। तो आपको खुद को अपने जानना है कि आपका पहला तो लाइफ का ध्येय क्या है, दूसरा आपको ये समझना है कि क्या आप ये काम कर सकते हो क्या। जैसे अगर आप मेरे को बोलो कि चलो ठीक है मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग जानता हूँ, कल आप बोलोगे आ जाओ मेरे गली में गली क्रिकेट खेलते हैं, मैं तो आऊँगा नहीं खेलने के लिए, तू मेरे को हरा देगा, एक बॉल में आप मेरे को बोल्ड कर दोगे, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो सीखा ही नहीं है, तो मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ। तो इसी तरह आपको अपने आप को एवेल्युएट करने का है कि मैं ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ। और ट्रेडिंग के लिए अपने आप को तोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सोचो कि जब घाटा होता है तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ, अपने बिहेवियर पर ध्यान करने का कि क्या मैं उस घाटे को झेल के रात को आराम से सो सकता हूँ क्या। और दूसरा, आपको अगर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि भैया इन्वेस्टमेंट करके अगर मेरा शेयर मैंने ले लिया 25 रुपये में और ये शेयर कोई लफड़ा हो गया, यूक्रेन का लफड़ा हो गया समझिए, या अभी इसराइल का लफड़ा हो गया और शेयर मेरा 20 रुपया हो गया, तब आप अपने आप को कैसे बिहेव करते हो। उस समय आपका माइंड पीसफुल रहता है कि नहीं रहता है, या आपके डिसीजन गड़बड़ होते हैं या नहीं होते हैं, ये इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आपको लगता है नहीं आप ये झेल सकते हो, क्योंकि आपने ये बात समझ लिया है कि मार्केट जितना नीचे जाएगा, अगर कंपनी में दम है तो ये शेयर उठ के वापस जब अच्छे टाइम आएंगे वापस ये ऊपर आएगा। आपने अगर ये चीज़ अगर समझ ली है, जो तभी मतलब 5 साल लगेंगे आपको ये सब चीज़ों को समझने के लिए। 1-2 बुल मार्केट आपको राइज एंड फॉल आपको देखना पड़ेगा, उस समय अपने आप को खाली आप देखते रहो और किसी को देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर आदमी एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर आदमी का डिफरेंट पर्सोना होता है। तो आप कैसे बिहेव करते हो ये आपको जवाब देगा आपको, कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँ या मेरे को 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करूँ, तो आपके सारे पैरामीटर गड़बड़ हो जाएंगे। जैसे मैं कोई शेयर इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं रहता है कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है, कि मैं 2 साल के लिए हूँ क्या 20 साल के लिए, मेरे को नहीं मालूम है। मेरे दिमाग में कोई प्राइस का फ्रेम नहीं रहता है कि ये डबल हो जाएगा मैं बेचूंगा, आगे 50 गुना होने के बाद भी बेचूंगा, ये भी मेरे दिमाग में नहीं रहता है। तो मैं पूरा ओपन रहता है मेरा माइंड, और मैं उसके साथ में फ्लो करता हूँ, उस कंपनी के साथ में, इकोनॉमी के साथ में, मार्केट के साथ में मैं फ्लो करता हूँ। मेरे को बुल मार्केट बेयर मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मेरे लिए बुल मार्केट बेयर मार्केट खाली एक रेफरेंस है, मार्केट है। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एज लॉन्ग कंपनी ठीक कर रही है मैं उसके साथ में टिका हूँ। लेकिन आप मेरी बात सुनकर ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में भी ये पेशेंस होना चाहिए कि आप 10 साल के लिए ऐसा टिक सकते हो गया, या 5 साल के लिए उस कंपनी में टिक सकते हो। इस बोलकर अपने को जानना जरूरी है। थैंक यू सर। आपकी आवाज़ बहुत तेज है, वहीं से चिल्ला के बोले। नहीं, आपको आप ही को दे दीजिए।
Hello sir, I am from Ram Niranjan Jhunjhunwala College. My question is to you, is the IDFC First Bank is the next potentially HDFC Bank? What's your opinion? वेरी प्रिसाइज. ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि IDFC बैंक दूसरा HDFC बैंक होगा नहीं होगा, और ये बात लेकिन मेरे को समझ में आती है कि उन दोनों में फ़र्क खाली इतना ही है, एक H है और एक I है, बाकी सब IDFC है, उसमें HDFC भी है, IDFC भी है. तो ये बोलना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये किसी के लिए भी बोलना मुश्किल है मैडम, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टर जो होता है उसके हाथ में समझिए एक टॉर्च होती है. आप टॉर्च जलाते हो तो आप 25 मीटर देखते हो, आप 25 मीटर जाने के बाद में आपको दूसरा 25 मीटर दिखाई देता है. आपको अभी से 1 किलोमीटर का रास्ता दिखाई नहीं देगा. अगर अंधेरा समझिए तो आपको 1 किलोमीटर का रास्ता अभी से दिखाई नहीं देगा. तो हम लोग इन्वेस्टर यही देखते हैं कि हम इतना लंबा नहीं सोचते हैं. ऐसे लग रहा है कि यहाँ करेंट टारगेट रखते हैं कि शायद 10 साल का 15 साल का ये कंपनी बड़ी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी बड़ी होती है. एक अमेज़ॉन अगर इतनी सक्सेस हो गई है, उसके पीछे हज़ारों ऐसी कंपनियां होगी जो फेल हो चुकी है, जिनका हमको अपने को नाम नहीं मालूम. लोग खाली सक्सेस स्टोरी ढूंढते रहते हैं. तो इस बोलकर इसका पता नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा, और ऐसा सोचकर इन्वेस्ट भी आपको नहीं करना चाहिए कि HDFC बनेगा कि नहीं बनेगा. HDFC तो जब बनेगा जब HDFC ने बढ़ना छोड़ दिया हो, या HDFC की ग्रोथ रुक गई हो, या HDFC सरेंडर हो गया हो, तब आपको सचिन खेलना बंद कर दिया, तब दूसरा आदमी आकर उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है ना. अगर सचिन आज भी अगर खेलता रहता तो दूसरा आदमी उसका रिकॉर्ड कैसे तोड़ता? आप समझ रहे हैं बात को. ब्रेडमैन का रिकॉर्ड अगर किसने खेलना बंद किया, उसका टाइम खत्म हो गया. अब दूसरा आदमी लेकिन अभी दौड़ रहा है, हो सकता है वो उसको रिकॉर्ड को तोड़ दे. तो इस बोलकर ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि ये HDFC बनेगा. HDFC बनेगा तो क्या होगा? आपको चेयरमैन तो नहीं बना देंगे वो लोग, क्यों आपने 20 साल से लेकर रखा है. आपको ये देखना चाहिए कि ये कंपनी हर साल ग्रो करेगी या नहीं करेगी, या 2-4 साल में कहाँ पर पहुँचेगी. अगर उसमें ग्रोथ है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, तो उसमें आपको पैसा बनेगा. गुड आफ्टरनून सर, माई सेल्फ सौरभ. मुझे पूछना था कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बोथ एस्पेक्ट से कौन सा बेटर होता है. लाइक वी कैन सी द लास्ट सेशन का रैली था, टाटा मोटर्स बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई शूट किया, एंड 6 मंथ से हम देख रहे हैं कि आइडिया इज़ 81% अप, एंड वेदांता ने 20% ऑलमोस्ट फॉल किया. तो फंडामेंटली नॉट सो गुड टाटा आइडिया विच इज़ इन डेप्थ. सो हाउ कैन वी मैनेज एंड सी which stock is more durable and reliable? क्या पूछा भाई, समझा नहीं. क्या आप पूछ रहे फंडामेंटल या टेक्निकल, ऐसा कुछ पूछा क्या? दोनों में कौन सा बेटर है पूछ रहे हो? इट डिपेंड्स. इफ आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस, आई डोंट अप्लाई एनी टेक्निकल इन माई फंडामेंटल्स. Okay, when I am investing my money or when buying a company, I don't look for technicals, because technicals will follow. Technicals always follow fundamentals. Fundamentals don't follow technicals. That is right? Correct. So I don't invest looking at the technicals of a company. So to me, if you will ask me, I will say that if you are investing for long term, if you are investing on the basis of fundamental, you should not look for technicals, because technicals may follow later. But if you are like, suppose if you are trading in the market, or if you are a trader for 5 days, for 10 days, or 15 days, for a month, or maybe for 6 months, I don't know about that, then maybe technical will help you. But that also you should understand that the top class technical person, suppose who has done the CMT is their course, I think 5 level, this level, that level, whatever, or you have experience of 20 years in technicals, then also your success rate could be 50% only. So this you should understand. I think in my personal view, technical is for trading, and fundamentals are for investment, long-term investment. थैंक यू विजय जी. अब नो मोर क्वेश्चंस प्लीज़. अभी विजय जी यहीं हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं इसके बाद में. तो विजय जी, अब ये लास्ट जो है हमारा सेशन है लंच से पहले का, तो इसमें आपका जो एक वो सॉन्ग है मैं अपने ड्राइवर के अपने अंकल के ड्राइवर से टिप लिया, उसको जो हम लोग बजा रहे हैं उसके साथ में आप प्लीज़ ज़रा वो गाना जो हमारे साथ 2 लाइन गुनगुनाकर ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़. आज पूरा तेल निकालेंगे मेरा. बस जी, आप ये लास्ट जी. हो गया मुझको लगने लगा, मैं गुरु हो गया, मुझको लगने लगा, मैं गुरु हो गया. कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया. मेरे फ्यूचर ऑप्शन
अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया, मेरे शेयर बाजार, मेरे शेयर बाजार मैंने मानी नहीं हार, तू उठाया गिराया मजा आ गया, तेजी मंदी के चक्कर में बुल और बेयर की टक्कर में उनकी ऐसा बनाया मजा आ गया, हुआ घाटा तो मैंने डिसाइड किया, हुआ घाटा तो मैंने डिसाइड किया, सबसे पहले ट्रेडिंग को गुड बाय किया, सबसे पहले ट्रेडिंग को गुड बाय किया, पेनी स्टॉक हटाया म्यूचुअल फंड में लगाया, पेनी स्टॉक हटाया म्यूचुअल फंड में लगाया, ऐसा इतना कमाया मजा आ गया, मेरे शेयर बाजार, मेरे शेयर बाजार मैंने मानी नहीं हार, तू गिराया उठाया मजा आ गया, अपनी विजय के लिए सुन, अपने विजय नचा दिया आपने। कॉन्फिडेंस है बाहुबली का सॉन्ग। मेरे पुष्पा का अरे तो पैसा खत्म हो गया, इतनी देर का ही पैसा दिया था आपने। और कितना तेल निकालेंगे भाई अभी अपन को जाने दे भाई। मंदी की आंधी मार्केट यही, चलो आप भी गाओ सब साथ में मिलकर। हुआ घाटा तो मैंने डिसाइड किया, हुआ घाटा तो मैंने डिसाइड किया, सबसे पहले ट्रेडिंग को गुड बाय किया, सबसे पहले ट्रेडिंग को गुड बाय किया, पेनी स्टॉक हटाया म्यूचुअल फंड में लगाया, पैसा इतना कमाया मजा आ गया, मेरे शेयर बाजार, मेरे शेयर बाजार मैंने मानी नहीं हार, तू गिराया उठाया मजा आ गया, मजा आया क्या? चलो एक जोर से ताली बजाओ। थैंक यू, थैंक यू। Stay here. We are about to give awards to the quiz competition winners. We are just going to call and we have to felicitate Hemant bhai. Take it. May I request A big round of applause for Vijay Kedia. 3 cheers. I would request Uttam, please come. Come. अरे आइए, आ जाइए. requesting Shri Vijay Mehta ji, Shri Uttam Bagri ji and Shri Ma'am Kavita ma'am to be on the stage to felicitate Shri Hemant Kakkar sir. देखा भाई, एक तरफ से दिया दूसरी तरफ से ले रहे हैं वापस। I request Uttam Bagri Saab to give a memento, token of love, plant which grows multifold. Requesting Shri Vijay sir to felicitate the winners of the quiz competition organized by KPP Hinduja College of Commerce in association with ANMI, celebrating the World Investor Week. The total number of participants were 344, out of which we have the top 3. May I call on stage Nishchay Manoj Goenka from KPP Hinduja College.
Preeti Dhobi from RJ College, and Vaishnavi Navnath Shinde from JDBIMS SNDT University. Mr. Stephen Pillai and Ms. Anisha Rodrigues from ANMI to be on the stage, requesting the dignitaries on the dais to felicitate them in appreciation of their efforts to make Industries-Year 2023 a huge big success. A huge round of applause for them, students. Can we hear it from you? Requesting Ms. Silpa Sahu and Mr. Manoj Naik from NKES College to be on the dais. Requesting Aman and Vignesh to join us on the stage. May I request, sir, to felicitate Ms. Anisha Rodrigues? May I request Vijay sir to please address the audience? Hello. Students, let me tell you all one thing. The learning that you all are getting from Vijay Bhai over here, you won't get it in any college. It is a matter of patience, it's a matter of discipline and being focused on the job that you are doing. And the best part is that he understood what was his weakness. He understood that trading is not meant for him. He left trading and he started investing. So please, students, do in what you all are the best. That will achieve your success. Thank you so much, sir. Requesting dignitaries on the dais. अच्छा, लास्ट में मैं खाली एक बात आपको बोलना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ पर बोली थी, जो मेरे को अवार्ड मिला था। आप ज़िंदगी में जो भी आप काम करते हैं वो काम में आप डटे रहिए। चाहे आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। मैंने ऐसा ज़िंदगी में सीखा है अपने से और लोगों को देख के कि जो आदमी अपने काम में लगा रहता है, जैसे बोलते हैं जीना या मरना या इसके सिवा जाना कहाँ। अगर आप अपना उसका एम बना लोगे कि मेरे को ज़िंदगी में इसी के साथ मरना है, इसी काम में जीना है, तो आपको सक्सेस आपकी बहुत हद तक आपके पास में होती है। तो ये बोलकर मैं एक बार वो 4 लाइन जो मैंने अवार्ड फंक्शन में बोला था, एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। बीच में म्यूज़िक आ गया था, पूरा नहीं चल पाया था। वहाँ पर शिंदे जी आने वाले थे, गोयल जी थे, फडणवीस साहब भी थे और शिंदे जी भी आने वाले थे। और उन्हीं के लिए मैंने ये कविता लिखी थी कि हर हालत में टिके रहो, यही समय का नियम है। ऑटो ड्राइवर सीएम बन गया, चाय वाला पीएम है। ये खेल अभी भी जारी है, करनी तुम्हें तैयारी है। कसले कमर, उठा ले बीड़ा, अब तेरी ही बारी है। Requesting dignitaries on the dais to felicitate Ms. Shilpa Sahu and Mr. Manoj Naik from NKES College. A big thank you to all the dignitaries on the dais. Thank you for your presence and for valuable words today. Requesting student representatives of the following colleges to meet us behind the stage, that is Jai Hind College, MSG SKGM Universal College, NM College, Rajiv Gandhi College of Arts, Commerce and Science,
Ram Narayan Junjunwala College, Sydenham College of Commerce and Economics, S.K. Somaiya College and St. Andrews College of Arts, Commerce and Science, and Thakur College. One student representative of these colleges kindly meet us to collect your mementos. Requesting all the student representatives to join us on the stage, please. Requesting all student representatives to join us on the stage. Student representative from Jai Hind College. Student representative from Universal College, are you on the stage? Student representative from NM College. Student representative from Rajiv Gandhi College of Arts, Commerce and Science. Student representative from Ram Narayan Junjunwala College. Student representatives from Sydenham College of Commerce and Economics. S.K. Somaiya College. St. Andrews College of Arts, Science and Commerce, and Thakur College. A big thank you to all the participating colleges. Thank you, students. I request Candelina ma'am to come on to the dais. NSDL. Yes.